فرمان میں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان میں بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن میں بدلا جائے گا. شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے, شاہی کو بدلتے دیکھا ہے. شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے, شاہی کو بدلتے دیکھا ہے. قانون اٹل ہے قدرت کا, اکان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. میرے محترم بزرگوں, دینی و ملی بھائیوں, نوجوان ساتھیوں اور سفید داڑھی والے بشروں, یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے. یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اور یہ آسمان جو ہمارے سروں پہ ہوتا ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. آسمانوں میں ستارے رب نے جڑے ہیں, آسمانوں میں چاند یہ رب کی قدرت ہے. آسمانوں میں سورج کا ہونا یہ رب کی کرشمہ سازی ہے, اور زمینوں سے غلے کا نکلنا یہ رب کی قدرت ہے. رب نے پوری دنیا کو بنایا ہے, اور جب کوئی قانون نافذ ہوتا ہے, جب کوئی اصول نافذ ہوتا ہے, تو اللہ کا اصول صرف ایک قریے کے لیے نہیں ہوتا ہے, ایک جگہ کے لیے نہیں ہوتا ہے, ایک بستی کے لیے نہیں ہوتا ہے, بلکہ اللہ کا قانون پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ پوری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اور اللہ کے قانون کو پوری دنیا مانتی ہے. خصوصاً مسلمان جو مومن ہیں, مسلم ہیں, وہ اڈاپٹ کرتے ہیں, اختیار کرتے ہیں. میں بتاؤں کہ جب دنیا کی حکومت ہوتی ہے, دنیا کا کوئی رولر ہوتا ہے, دنیا کا کوئی شاشک ہوتا ہے, چاہے ایک ادنا سا انسان پنچایت کا مکھیا یا پردھان کیوں نہ ہو, وہ اپنے پنچایت کے لیے قانون نافذ کرواتا ہے. یا پھر سی ایم ہو تو اپنے اسٹیٹ کے لیے, ریاست کے لیے, صوبے کے لیے ایک قانون نافذ کرواتا ہے. اسی طریقے سے ایک ملک ہو, کنٹری ہو, وہاں کے لیے ایک قانون نافذ ہوتا ہے. یقیناً ہر اس کنٹری کے افراد, ہر اس گاؤں کے اور پنچایت کے اور صوبے کے اور ریاست کے اور اسٹیٹ کے افراد تمام قوانین کو فالو کرتے ہیں. یہ دنیاوی دستور ہے, یہ دنیاوی قانون ہے. اور جب قانون کو اختیار کرنے میں کوئی فرد سستی اختیار کرتا ہے, تساہل کرتا ہے, غفلت سے کام لیتا ہے, تو حکومت اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے. یہ دنیاوی سچائی ہے. لیکن وہ رب جس نے اس آسمان کو بنایا ہے, وہ رب جس نے اس زمین کو بنایا ہے, وہ رب جس نے پورے سنسار کو بنایا ہے, وہ رب جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے, وہ رب جس نے دنیا و ما فیہا کو بنایا ہے, وہ رب جو اس آدمی کو بنایا ہے, جو آدمی اس دنیاوی قانون کو وضع کرتا ہے, جو آدمی دنیاوی قانون اختیار کرتا ہے, اس رب نے پوری دنیا کو بنایا ہے. آپ بتائیے, کیا ایک پنچایت کے لیے قانون بن سکتا ہے, ایک صوبے کے لیے قانون بن سکتا ہے, اور ایک ملک کے لیے قانون بن سکتا ہے؟ تو کیا وہ رب جو پوری دنیا کا رب ہے, وہ پوری دنیا کے لیے قانون نہیں بنا سکتا ہے؟ اس نے پوری دنیا کے لیے قانون بنایا ہے, اور اس کا قانون اسلام ہے, اس کا قانون شریعت محمدی ہے. اس کا قانون وہ ہے جو اس کی شریعت کو فالو کرتا ہے, وہ اس کا قانون مانتا ہے. وہ کہ اللہ کا قانون اس دنیا میں یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ اللہ کی پوجا کریں, اللہ کی عبادت کریں, اس لارڈ, اس گاڈ, اس ایشور, اس پرمیشور, اس کریٹر اور اس سسٹینر کے سامنے سرزریز ہو جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے, یہی رب کی شریعت ہے. اور یقیناً رب کی شریعت انسان کو سنوارتی ہے, رب کی شریعت
इंसान को निखारती है, रब की शरीयत इंसान को इंसान बनाती है, रब की शरीयत इंसानों के अंदर मानवता बेदार करती है, रब की शरीयत इंसानों के अंदर ह्यूमैनिटी बेदार करती है, रब की शरीयत इंसानों को एक अच्छा और परफेक्ट इंसान बनाती है। लेकिन वो कानून जो दुनियावी कानून होते हैं उसका कभी पासो लिहाज होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन वो कानून जो रब का कानून होता है, लोग उसका पासो लिहाज कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। आज मैं बता दूं, आज उसी कानून के खिलाफ ये बातिल ताकत खड़ी हुई है, रब के कानून के खिलाफ ये बातिल ताकत उठी हुई है, रब के कानून के खिलाफ आज बातिल ताकत एतराज़ात ला रही है। रब के कानून को आज ये बातिल ताकत मिटा देना चाहती है, रब के कानून को आज ये बातिल ताकत कल-अदम कर देना चाहती है। रब के उस उसूल को जो रब ने वज़ा किया है, रब का वो कानून जो रब ने बनाया है, रब की वो शरीयत जो रब ने नाज़िल की है, आज ये बातिल ताकत चाहती है। आज ये यहाँ के सोसाइटी वाले और यहाँ के वो लोग जिनके हाथों में स्याह और सफेद है, जिनके हाथों में राजगद्दी है, जिनके हाथों में सुपर पावर ताकत है, वो ये चाहती है कि उसका कानून चले, रब का कानून बंद हो जाए। वो ये चाहते हैं कि उसका नाफिज किया हुआ रूल चले और रब का रूल बंद हो जाए, रब का रूल नाफिज नहीं हो। बताओ ये कैसे हो सकता है? जो पूरी दुनिया का, पूरे संसार का मालिक है, जिसने पूरी दुनिया के लिए एक कानून बनाया है, उसका कानून बंद हो जाए, इंसानी कानून चले, ये कभी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हुआ था, आज भी नहीं होगा। आइए हम तारीख देखते हैं, शुएब अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ था। उनको डराया गया था, उनको धमकाया गया था और उनको कहा गया था कि आप हमारे मिल्लत में आ जाएं, आप हमारे दीन और धर्म में आ जाएं, आप अपने दीन और धर्म को रिजेक्ट करें और हमारे दीन और धर्म में आ जाएं, आप घर वापसी करें। ऐसे वक्त में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बवांगे दौल और डंके के चोट पे ऐलान किया था और कहा था कि रब का कानून ही जिंदाबाद है और रब का कानून ही चलेगा, चाहे जो हो जाए, चाहे तोपों के दहाने पे खड़ा होना पड़े, खड़े होंगे, चाहे गोलियों की बरसात हो, ये हो जाए, लेकिन रब का कानून पूरी दुनिया में वज़े होने के लिए आया है, रब का कानून पूरी दुनिया में नाफिज होने के लिए आया है, इसलिए रब का कानून ही नाफिज होगा। इसलिए आज उन लोगों से जो रब के कवानीन को मानते हैं, जो मुस्लिम हैं, जो मोमिन हैं, जो एक अल्लाह को मानते हैं, जो एक ईश्वर को मानते हैं, जो एक परमेश्वर को मानते हैं, ऐसे लोग जो आज ऑब्जेक्शंस दाखिल करा रहे हैं, एतराज़ात दाखिल करा रहे हैं, ऐसे लोगों को सबसे पहले पैगाम मैं ये दूंगा, सबसे पहले मैसेज मैं ये दूंगा, संदेश ये दूंगा कि लोगों, ये लोग अगर तुम्हारे खिलाफ हैं, अल्लाह की शरीयत के खिलाफ हैं, तो हो जाने दो, हो जाने दो। तुम्हें नमाज से कौन रोकता है? तुम्हें शरीयत पे अमल करने से कौन रोकता है? कहीं ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ है कि तुम नमाज के लिए आए हो और पुलिस की गाड़ी आ गई हो कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते? कभी ऐसा नहीं हुआ है और न इंशाअल्लाह होगा। हालात यहाँ नहीं आए हैं, हालात फ्रांस की तारीख को पढ़िए, रसिया की तारीख को पढ़िए, पढ़िए उन मुल्कों की तारीख को जहाँ हालात आए थे, जहाँ रब का नाम लेना जुल्म बन चुका था, जुर्म बन चुका था, जहाँ अल्लाह का नाम लेना एक मुल्ज़िम कहलाने वाला होता था, वहाँ रब का नाम नहीं लिया जाता था। ऐसे हालात में भी, ऐसे पुरअशोक दौर में भी, ऐसे पुरफितन हालात में भी और ऐसे वक्त में भी लोगों ने रब का नाम लिया है, रब की शरीयत को इख्तियार किया है, रब की शरीयत को अडॉप्ट किया है। ये कुछ भी हालात नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, आप उधर एतराज़ भी दाखिल करवाएं, अपने ऑब्जेक्शंस भी दाखिल करवाएं और अपनी शरीयत को इस हुकूमत से कहें कि आपकी शरीयत को जिंदा रखें। और सबसे बड़ी बात ये है कि हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले कहा था, बहुत पहले कहा था, जिसे एक सदी बीत चुकी है, उन्होंने कहा था
अगर तुम चाहते हो रब का कानून जिंदा रहे, अगर तुम चाहते हो रब का पैगाम जिंदा रहे, अगर तुम चाहते हो कुरान जिंदा हो, हदीस जिंदा हो, अल्लाह की बातें जिंदा हो, रसूल के फरमात और इरशादात जिंदा हो, तो तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें कुरान पे अमल पैरा होना पड़ेगा, अल्लाह के रसूल की हदीस पे अमल पैरा होना पड़ेगा। जो नमाज के लिए कहा जाता है नमाज पढ़ना पड़ेगा, यही शरीयत की हिफाजत होगी। अगर तुम नमाज छोड़ के सिर्फ चाहोगे एतराज़ात दाखिल करवा ले, ऑब्जेक्शंस दाखिल करवा ले, ये सूदमंद हो जाएगा, ये यूजफुल हो जाएगा, तो मैं कहूँगा ये यूजफुल टेम्पररी होगा, ये वक्ती तौर पे हो सकता है, लेकिन असल यूजफुल और मुफीद उस वक्त होगा जब शरीयत की हिफाजत करने वाले आप हैं, तो शरीयत की हिफाजत उस वक्त होगी। शरीयत को मान लीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कने साफ हो जाइए, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक आप मुस्लिम बन जाइए और इस्लाम के तमाम अरकान पे, असल इस्लाम के अल्लाह के तमाम अहकाम पे अमल पैरा हो जाइए। यकीनन रब की शरीयत हिफाजत में आ जाएगी, रब की शरीयत को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, रब की शरीयत को हिफाजत मिल जाएगी, रब की शरीयत के लिए हिफाजती दस्त से आप खुद हो जाएंगे। जब आप भी अल्लाह की शरीयत को पांव तले रौंदेंगे तो फिर कौन इसकी हिफाजत करेगा? नमाज आप छोड़ेंगे तो शरीयत की कौन हिफाजत करेगा? अब मक्कारी आप करेंगे, शरीयत की कौन हिफाजत करेगा? सोद आप खाएंगे, शरीयत की कौन हिफाजत करेगा? चोरियां आप करेंगे, शरीयत की कौन हिफाजत करेगा? नाक तौल में डंडियां आप मारेंगे, शरीयत की कौन हिफाजत करेगा? और भाईचारे को बर्बाद आप करेंगे, शरीयत की कौन हिफाजत करेगा? कुरान की खिलाफ वर्जी आप करेंगे, शरीयत की कौन हिफाजत करेगा? अल्लाह के रसूल के फरमात की खिलाफ वर्जी आप करेंगे, शरीयत की कौन हिफाजत करेगा? जिस दिन आप कमा हक़्क़हू पूरे तौर पे अल्लाह और रसूल की बातों पे अमल पैरा हो जाएंगे, उस दिन शरीयत हिफाजत में आ जाएगी, उस दिन शरीयत को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। हाँ, उस दिन शरीयत को सेफ्टी मिल जाएगी। उस दिन फिर ये नहीं कहा जाएगा कि कोई एतराज़ात दाखिल करवाए, कोई ऑब्जेक्शंस दाखिल करवाए, इसलिए कि कुरान कहता है ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास, कि जो कुछ भी खुश्क तर में तब्दीलियाँ आती है, फसादात रोनुमा होते हैं, ये इंसानों के करतूत की वजह से होते हैं। और क्यों होते हैं? रब ने हमें बेहतरीन कानून दिया था, रब ने हमें बेहतरीन शरीयत दी थी, रब ने कहा था शादियां सुन्नत के मुताबिक करो, निकाह सुन्नत के मुताबिक करो, लेकिन हमने शादियों को रस्म रिवाज का नाम बना दिया, हमने शादियों को खरीदो फरोख्त का नाम बना दिया, हमने शादियों को बारातियों का नाम दे दिया, हमने शादियों को और बेशुमार खुराफात का नाम दे दिया। तो फिर रब ने आज वो हालत दे रखी है, रब ने आज वो दिन दिया है कि आज उस शरीयत पे, आज उस रब के कानून पे, आज उस रब के फैसले पे हुकूमत की तलवार लटक रही है कि किसी वक्त पे यकसा सिविल कोड नाफिज हो और फिर ये सिंपलनेस और ये फिर साधारण शादियाँ और ये निकाह जो आसानी वाला निकाह होता है ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ये नापैद हो जाएगा। ये कमी हमारे तरफ से हुई है, सबसे बड़े मुजरिम हम हैं, सबसे पहले एक्यूज्ड हम हैं, सबसे बड़े दोषी हम हैं, इसलिए कि रब ने कानून हमें दिया था, हमने अमल नहीं किया, रब ने शरीयत हमें दी थी, हमने अमल नहीं किया। अगर हम रब की शरीयत पे अमल कर रहे होते, रब की शरीयत को मान रहे होते, निकाह को आसान, शादी को आसान बना रहे होते, तो फिर ये कानून कभी नाफिज नहीं होता, ऐसे हालात पैदा नहीं होते, फिर ऐसे वक्त देखने को नहीं मिलते। और यकीनन इसी तरीके से जब हमने लड़कियों को विरासत से महरूम किया है, तो आज विरासत का हक भी कलादम किया जाने वाला है। आज अपनी सोसाइटी को देखिए, अपने मुआशरे को देखिए, लड़के को पूरी प्रॉपर्टी दी जाती है, पूरा हिस्सा दिया जाता है, लड़कियों को महरूम कर दिया जाता है, ये कह के कि हमने तुम्हारा जहेज बर्दाश्त किया है, ये कह के हमने तुम्हें सामान्य जहेज दिया है, ये कह के कि हमने तुम्हारे
तुम्हारी शादियां की है, ये कह के कि हमने तुम्हारी शादियों पे बेशुमार रुपए पैसे खर्च किए हैं, इसलिए जमीन में अब कोई तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा, तो यकीनन ये उसी वक्त कुरान के खिलाफ जाता है, उसी वक्त वो अल्लाह की शरीयत जो कुरान है उसके खिलाफ जाता है। उस वक्त दर्द नहीं होता, उस वक्त अफसोस नहीं होता। आज माए माए और हाय हाय चिल्ला रहे हैं कि हाय ये हुकूमत क्या कर रही है, हाय ये हुकूमत कैसी साजिश कर रही है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले रब के हुजूर में तौबा कीजिए और रब से कहिए, रब हमसे गलती हुई है, रब हमसे नाफरमानी हुई है, हम नादिम हैं, हम शर्मिंदा हैं, हम तेरी शरीयत को मानने के लिए हम ऐद करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं मरते दम तक तेरी शरीयत को मानेंगे। ये हमारी कमअक्ली थी, ये हमारी गफलत और सुस्ती थी कि हमने तेरी शरीयत को नहीं समझा। आज तेरी शरीयत हमसे छीनी जा रही है, इसलिए आज हर एक वालिदैन को चाहिए कि अपनी बेटियों का हक विरासत उनके हवाले करे और जहेज का कोई नाम नहीं ले और निकाह को, शादियों को आसान करे, सिंपल करे। और इसी तरीके से वो नौजवान जो शादीशुदा है उनको चाहिए तलाक का सही इस्तेमाल करे, तलाक का सही इस्तेमाल करे। जब तलाक का गलत इस्तेमाल हुआ है, जब तलाक की खिलाफ वर्जी हुई है, धड़ल्ले से तलाक दी गई है, तो आज तलाक में भी चेंजिंग आने वाली है, आज तलाक के खिलाफ भी फैसले आने वाले हैं कि जब ये यकसा सिविल कोड खुदा न करे नाफिज होगा, उस वक्त हक वरासत छिन जाएगा, उस वक्त ये तलाक का मसला खत्म हो जाएगा, उस वक्त ये निकाह शादी जो सिंपल होती है और जो बिल्कुल आसानी के साथ हो जाती है, ये भी खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से और भी मसाइल हैं जो खत्म हो जाएंगे और जो आप चाहते हैं डीजे हो, बाजे हो, नाच हो, थिरकने हो, ये सब कुछ हो जाएगा। इसलिए खुदारा आज भी वक्त है और अब किसी भी वक्त हुकूमत के काये को पलट सकती है, इसलिए कि रब का रसूल कहता है कि तमाम के तमाम हुक्मरान उनके कुलूब रब के हाथ में होते हैं, रब जिधर इशारा करेगा वो उधर पलट जाएगा। इसलिए खुदा आप पलट जाइए रब की तरफ, ताकि रब उन हुक्मरानों को आपकी तरफ पलटा दे। और यकीनन सबसे पहले आप तौबा कर लीजिए और रब की शरीयत को मान लीजिए, सबसे पहले आप ताइब हो जाइए और रब की शरीयत को मान लीजिए। उसके बाद आपने काम ये करना है कि आप उसके बाद काम ये करेंगे कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये हिदायत दिए गए हैं कि हर कोई अपने अपने एतराज़ात दाखिल करवाएं, अपने अपने ऑब्जेक्शंस दाखिल करवाएं। इसलिए हर नौजवान को चाहिए, और नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो एजुकेटेड है, जो ग्रेजुएट है, या फिर जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना जानता है, ऐसे नौजवानों को चाहिए कि वो इसके तरीके को समझे और एतराज़ात दाखिल करवाएं, ऑब्जेक्शंस दाखिल करवाएं। और यकीनन इसके लिए मैं अपने नौजवानों को कहूँगा, मेरे नौजवानों, आप तो दुनिया भर के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, बेशुमार चीज़ों के लिए करते हैं। आज रब की शरीयत को बचाने के लिए कर लीजिए, रब की शरीयत की हिफाजत के लिए कर लीजिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल रब के कानून की हिफाजत के लिए कर लीजिए। आप खड़े होइए और रब के शरीयत को बचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। और वो हजरात जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो मजदूर टाइप के हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है, ऐसे लोगों के पास जाइए और उनसे उनके एतराज़ दाखिल करवाइए। और वो के एक एक मोहल्ले, एक एक बस्ती के एक एक फर्द के पास जाइए। हर नौजवानों को चाहिए कि वो जाए, और इसके लिए इंशाअल्लाह एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो नौजवानों पे मुश्तमिल होगी। वो नौजवान एक एक फर्द के पास जाएंगे और अपने अपने एतराज़ात दाखिल करवाएंगे, अपने अपने ऑब्जेक्शंस दाखिल करवाएंगे। इसके लिए सिर्फ एक हफ्ते का टाइम बाकी है, 14 जुलाई तक ये वक्त है। आप चाहें तो एतराज़ दाखिल करवा लें और इंशाअल्लाह वो जो नौजवानों की जमात तश्कील दी जाएगी बहुत जल्द, अभी शाम तक ही तश्कील दी जाएगी।
ताकि बहुत जल्द बहुत कम वक्त में हुकूमत तक हर एक के एतराज़ात पहुँचाए जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के पास अपने एतराज़ात दाखिल करवा दीजिए, शरीयत को मान लीजिए, ताकि ये जो हालात है वो ख़त्म हो जाए, ये जो कैफियत है वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी शरीयत की पासदारी और पाबंदी करने वाला बनाए, और अल्लाह ताला इस हुकूमत के दिलों में बात डाल दे कि अल्लाह की शरीयत को वो भी हर जगह नाफिज करने वाला हो जाए, और हर जगह अल्लाह की शरीयत का बोलबाला हो, हर जगह कुरान हदीस तमाम चीज़ों का चलन और रिवाज हो। आमीन व आखिर दावा।